So after getting freedom, India was just newly came into existence. Na? Earlier it was divided into small provinces, like Punjab was different state, Haryana was different, Haryana was included, Hyderabad was different. Then in this way, many Rajasthan was different, even Bengal were different. So different provinces were there. So these people who fought for freedom now were what called freedom fighters. Pandit Jawaharlal Nehru, then Mahatma Gandhi, and many others you people know. So the main importance of Sardar means main contribution of Sardar Vallabhbhai Patel was to unite all the small provinces into a nation, and thus India came into existence. It was his credibility that he brought all small provinces, leader of all small provinces together and formed this our present country India. So his role is very important because he united the whole country. That's why his birthday is being celebrated as Unity Divas. Na? Means in Hindi you can say Rashtriya Ekta Divas, National Unity Day. Okay. So today our Honorable Prime Minister is also going to going to have a grand event at Gujarat. That is place is when maybe near I think the place is something like, anyways you can Google it. Okay. So Statue of Liberty, you heard, no? Is the tallest statue in the world. In, means up to death. Okay. So in this day of unity, we should take a pledge that we should all remain united, because when we unite, we become powerful, isn't it? Suppose if I am alone, I'm not having this relationship with my colleagues or whatever, my social groups, na? So what happens? Suppose in case of some trouble, all will help me, isn't it? So you people also develop this quality, that our country is called as unity in diversity, isn't it? Why? Because lot of people live here which follows different culture, isn't it? Even different religion also. Our country is the only country in the world which has all the religions of the world. That means all religion believers are living in our country. No other country in the world is there in which all the religion of the world are present. So it's a very plus point for our country that we people having different religion, caste, creed, culture, all live united, isn't it? So unity provides us power, it makes us powerful. So you people also should not discriminate yourselves, na? In different groups. Be united, and unity will provide you power, isn't it? So with that, I would like to conclude my speech and request Narendra Mishra sir to explain it more about this day. Sir. सुप्रभात आप सभी को। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक सहकर्मी, भावी भारत के निर्माता, प्यारे बच्चों, आज पूरे देश में एकता दिवस मनाया जा रहा है और ख़ास करके विद्यालयों में इसे खास दिवस के रूप में लिया गया है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिस पर आज गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। जब जब देश करवट बदलना चाह रहा है, वैचारिक क्रांति की आज महती आवश्यकता है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का जहां अभियान जोरों पर चल रहा है, वहीं आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं
जिनके मन में कहीं सांप्रदायिकवाद, कहीं जातिगत भेदभाव, तरह तरह की संकुचित विचारधारा से उनका मन आज भी जकड़ा हुआ है। ऐसे हालात में और सीधा एक सबसे बड़ा उदाहरण तो आप अपनी उपस्थिति से देख लीजिए। आप लोगों की उपस्थिति से साफ साफ बयां हो जाता है कि हमारी एकता आज बाधित हो रही है, हमारा संगठन कमज़ोर हो रहा है। आपकी उपस्थिति इस बात का परिचायक है। आज इस दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नया संदेश अपने जीवन की गाथा को हमारे जीवन में उतारने के लिए अदृश्य रूप से आज हमारे बीच मौजूद है। समझ लीजिए, जिस तरह से उन्होंने भारत में विलय न होने वाले सल्तनत को, जागीरों को, उनके विचारों में परिवर्तन करके उनको अपने में मिलाया, आज प्रभुत्व संपन्न शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है। तरह तरह के लोग, तरह तरह की भाषा, तरह तरह का खान पान, उसके बावजूद भी आज पाश्चात्य शैली ने हमारे जीवन को इस तरह से प्रभावित कर दिया है। आवश्यकता भी समझिए आप, परिवर्तन के लिए पाश्चात्य शैली को अपनाना जरूरी भी हो गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप पाश्चात्य शैली से अपने जीवन को प्रभावित जरूर करें, लेकिन अपने हृदय को भारतीय रंग में रंगने की पूरी कोशिश करें। तीसरी कसम शैलेंद्र जी का वो गीत याद आ जाता है, मेरा जूता है जापानी, जानते होंगे आप लोग। और ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ऐसे में बड़ी आवश्यकता है वैचारिक परिवर्तन की, और इस वैचारिक परिवर्तन के लिए ये देश कसमसा रहा है। आप विदेशों पर नज़र डालेंगे, आज विकसित भारत, उभरते भारत को देख करके विदेशी हरकतें आज नज़रें टिकाए हैं हिंदुस्तान पर। कैसे ये विकसित हो रहा है, किस तरह की चालबाजी साजिश रची जाए कि ये विभाजित हो। अपने देश में भी कुछ तत्व इस तरह के हैं, आप आए दिन देखते होंगे, टीवी वगैरह समाचार प्रभावित होते होंगे। लेकिन सब कुछ मिला करके साथियों, विद्यालय एक सबसे बड़ा प्रमाण है, और शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है वह युग की मांग को समझे। देश क्या चाहता है, भावी समय किस तरह से देश को विकसित करने जा रही है, ये पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की बनती है। और जिसका उत्तरदायित्व आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब समाज पथभ्रष्ट हुआ है, जब जब देश की आवश्यकताएं उभर कर सामने आई हैं, पारदर्शी शिक्षकों ने आप लोगों को साथ लेकर के एक बड़ा बदलाव महसूस किया है और बदलाव करके दिखाया भी। आज शिक्षकों की भी जिम्मेदारी बढ़ी है। पठन पाठन के क्षेत्र में सिर्फ कागजी मूल्यांकन करके एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेज देना, इतनी ही जवाबदारी जिम्मेदारी शिक्षक की नहीं बनती। एक स्वस्थ नागरिक की भूमिका में छात्र को तब्दील करके और विद्यालय से बाहर करके राष्ट्र को समर्पित करना भी शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में आप अपने मूलभूत भारतीय संस्कृति के ढांचे में ढलने का आप पूरा प्रयास कीजिए। एक विद्यालय को ले लीजिए आप, प्रमाण के तरीके से जहां आप मौजूद हैं, उपस्थित हैं। एक ड्रेस, जबकि आप विभिन्न प्रांतों से आने वाले लोग हैं, विभिन्न खान पान है, विभिन्न बोली भाषा है, लेकिन जब विद्यालय में आप जाते हैं तो रमेश दिनेश का नाम गायब, आप सिर्फ एक विद्यार्थी के नाम से जाने जाते हैं। आप देश में रहने वाले नागरिक हैं, विभिन्न प्रांतों से आप जुड़े हुए हैं, विभिन्न तरह की संस्कृति आपकी है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से एक क्यारी में गेंदा, गुलाब, जूही, चंपा ये अपनी रंगत बिखेरती रहती है, और आप गौर तलब होकर देखिए तो कहीं जूही की डाल चंपा पर लटक रही है, तो चंपा की डाल कहीं गेंदा पर लटक रही है। इस तरह का वातावरण आपको देश में तैयार करना होगा, तो ही हमारी एकता, हमारा संगठन मजबूत होगा, और हमारे कुशल प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो पूरा होगा। तो क्यों न हम ऐसे
गुलिस्ता का निर्माण करें। जैसे विभिन्न प्रकार के फूलों को मिला करके एक गुलिस्ता बनाया जाता है खूबसूरत, जिसमें नाना प्रकार के फूल इकट्ठा होते हैं और उसकी खूबसूरती, उसकी रंगत उभर कर अलग दिखाई देती है। उसी तरह से हम सारे भेदभाव को मिटा करके, मन की सारी संकीर्णताओं को मिटा करके, जो संकीर्णताओं के जाल में फंसे हुए हैं उनकी विचारधारा को भी तब्दील करना हमारी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। हम कैसा आलम बनाएं, कैसा मंजर बनाएं, कैसा गुलिस्ता बनाएं कि आगे आने वाले दिनों में इस विशाल भारत रूपी वृक्ष पथ की शाखा पर कहीं कोयल गीत गाए तो कहीं बुलबुल तराना सुनाए। मेरे दोस्तों, हर हाल में आपको सारी मन की संकीर्णताओं को मिटा करके, क्या अरुणाचल, क्या आसाम, क्या और प्रांत, ये सारे प्रांतों के भेदभाव को मिटा करके जहां आपके सामने सवाल किया जाए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप प्रांत विशेष को भूल जाइए और गर्व से बोलिए कि हम भारत के रहने वाले हैं। आपकी जात क्या है, तुरंत आपके मन में इस तरह का भाव आना चाहिए कि हमारी एक ही जाति है और वो है भारतीयता। धर्म की बात आ जाए तो आप सारे संप्रदायवाद को भूल जाइए, सीधे उत्तर दीजिए कि हमारा मात्र एक ही धर्म है, वो है इंसानियत, मनुष्यता और मानव जाति की रक्षा करना। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज के दिवस से हो सकता है आप अपने छात्र जीवन को प्रभावित करें और आप ही भावी श्रेष्ठ भारत के निर्माता बनेंगे, आज नहीं आने वाले दिनों में। तो एक ऐसे भारत का निर्माण करें और यह तभी संभव होगा जब आप अपने जीवन में, वर्तमान काल में, आप अपने मन की संकीर्णताओं को तोड़ करके वैचारिक परिवर्तन करेंगे। हमारा देश विश्व में सशक्त भारत, विकसित भारत और एक भारत, श्रेष्ठ भारत के नाम से जाना जाएगा। तो मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। So, we have nothing more to do, but simply lastly, we'll have to take a pledge that will remain united. Okay? So you will all pronounce this after me. Okay?